Hello everyone. Today we will start a series of current affairs 2020. These current affairs have been handpicked for you और ये सारे current affairs आपके लिए बहुत important है. तो हम इन current affairs को बहुत ध्यान से करेंगे. तो let us start. हम इसे शुरू करते हैं. The first is the International Olympic Committee decided upon the change with the new motto faster, higher, stronger, together. The specific motto for the Tokyo Games remain unchanged, united by the correct option is emotion. United by emotion has been considered as B option is the correct, is considered as the theme for this Olympics. This current affair is of 2020. The Olympics got completed in 2021. So हम ये जो Olympics हैं ये these Olympics have been considered as the longest Olympics that have been held. B will be the right answer. B आपका ठीक रहेगा. Next question. Dash money is the monetary policy tool used for quantitative easing. It aims to dump money into a struggling economy. देखिए इसका आंसर ए ऑप्शन है, दैट इज हेलीकॉप्टर. Helicopter economy is kind of a economy in which the money is being pushed into the monetary sector. जब आपके पास कोविड-19 जैसी कोई गंभीर समस्या आ जाती है, जब कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो इकोनॉमी है दैट कॉन्टीन्यूसली क्रैशेस, तो उस इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए द मनी इज़ बीइंग पुश्ड इनटू द इकोनॉमी, तो उसको हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जाना जाता है. तो इसको आप याद रखेंगे, ए इज़ द राइट आंसर. Next is International Mother Earth Day is celebrated every year on 22nd April to recognize that the earth and its ecosystem are our home, and that it is necessary to promote harmony with nature and earth. The day was established in 2009 by the United Nations General Assembly. Again this question is again important, इसे याद रखेंगे. और basically what is the theme से related ये question है, तो theme is the climate action is the right answer, so you should keep in mind climate action इसका जो रहा था वो theme रहेगा. Next, which organization releases reports trends in the world military expenditure. अब देखिए जो world military expenditure है that is a current topic. SIPRIC is the right answer. ये current topic इसलिए है क्योंकि there is again a race of armament जो है विद इन द कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में रेस ऑफ आर्मामेंट्स जो है दैट हैज़ इंक्रीज्ड अगेन. और जो कंट्रीज हैं दे आर शोइंग ऑफ विद लाइक हम एग्जांपल रिसेंटली देख सकते हैं इसराइल का, जो उसके पास डोम मिसाइल सिस्टम है जो हमने अभी देखा था. तो ड्यू टू दिस, तो इसका जो ट्रेंड है कि वर्ल्ड मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो किस साइड को जा रहा है, तो उसका जो ट्रेंड है वो SIPRI जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें बताता है. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप्ड एट द ऑल इंडिया लेवल फॉर माइक्रो इरिगेशन कवरेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY. इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इज तमिलनाडु. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो ये आपके पास जो योजना है दैट इज़ टू ब्रिंग इरिगेशन टू ऑल द फील्ड्स. कोई भी जो फील्ड्स हैं वो हमारी जो फील्ड्स हैं, फार्म फील्ड्स हैं, वो ड्राइनेस की वजह से या इरिगेशन के लैक की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए स्कीम हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई है एंड तमिलनाडु हैज़ डन वेरी वेल and it has topped the list. Name the Indian ministry which has launched the portal named Stranded in India. अब देखिए ये टूरिज्म ने हमारे पास लॉन्च किया है एंड दिस मिनिस्ट्री इज बेसिकली दिस portal is basically for all the people, those who have all the tourists, those who have been stranded in the country, जो कंट्री में फंस गए हैं आफ्टर कोविड-19, तो उनके लिए ये एक पोर्टल है दैट हैज़ बीन लॉन्च. तो 6 का आंसर आपका ए रहेगा. 7th, the World Homeopathy Day is celebrated each year on April 10 to honor the birth of the father of homeopathy systems of the medicines. The theme of 2020 enhancing the scope for homeopathy in public health. तो उसके फादर कौन है, इनके फादर जो हैं दैट इज़ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन. तो इट इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसे. नेक्स्ट, नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज़ launched the web portal named Yukti to record and monitor the effectiveness and initiatives of the which ministry. तो आपके पास द ऑप्शन इज ई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ HRD. अब ये जो युक्ति स्कीम है दैट इज़ द स्कीम फॉर एजुकेशन, आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ऑल द रूरल सेक्टर्स. उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया. और आपका जो ई ऑप्शन है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट लुक्स आफ्टर दिस स्कीम. What is the mascot of Tokyo Olympics 2020? A factual question है. Mirai Tova is the your mascot of your Tokyo Olympics. Mirai Tova
इसका मैस्कट है, तो यू कैन वॉच फॉर द इमेजेस, यू कैन सी इट। 10th, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, अब ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी वो है रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मतलब हमारी जो दुनिया है उसमें इकोनॉमी का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, हाउ इट इज़ गोइंग, इज़ इट फेयर और इज़ इट नॉट फेयर, किस कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत है, कौन सी कंट्रीज़ आर सेल्फ सफिशिएंट, तो उसके बेसिस पे स्कीम है। तो द राइट आंसर इज़ योर बी, दैट इज़ IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 11th, on occasion of Chinese Space Day, April 24, 2020, the China has named its first Mars exploration mission. अब देखिए मार्स पे जाने के लिए हर कहीं से लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। ऑल द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू रीच मार्स एज सुन एज पॉसिबल। तो आंसर इज योर Taniwen-1, Taniwen-1 इज द राइट आंसर, तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। 12th, what is the fiscal deficit in terms of percentage of GDP of India in Feb 2020 as per government GOI? तो fiscal deficit मतलब हमारा कितना जो पैसा है, कितना डेफिसिट है हमारा, जो करंट हमारे पास पैसा होना चाहिए और कितना पैसा हम लॉस में है, उसके बीच में जो डेफिसिट होता है, दैट इज फिजिकल डेफिसिट, एंड द आंसर इज 5.07%. Next, the government of India has launched its biggest ever evacuation exercises named the Vande Bharat mission. C is the right answer. तो वंदे भारत मिशन है जिसमें हमारे जितने भी लोग जो हैं स्ट्रैंडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज़ में ड्यू टू द कोरोना, तो उनको सब लोगों को इवैक्यूएट जो है वो किया जा रहा है, तो वंदे भारत मिशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, योर नेम द ऐप डेवलप्ड बाय CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर इज योर ए, दैट इज किसान सभा ऐप। ठीक है जी, तो बेसिकली ये कनेक्टिविटी के लिए ऐप है ताकि आपके जो फार्मर्स हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत इजीली मार्केट तक पहुंचा के उनको सेल कर सकें। नेक्स्ट, समर्थ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो आंसर वुड बी बी, या इसका आंसर आपका बी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अगेन HRD will be the right answer, or it is for the basically summer scheme is basically the for the growth of your different small scale industries like textiles। ठीक है जी, तो जो छोटे मोटे आपके एंटरप्राइजेज होते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये एक ही गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो 15th का राइट आंसर विल बी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ HRD। 16th, which state government has decided to roll out मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना in which at least 120 days assured employment will be provided to people living in the urban areas? तो इसका आंसर है हमारा डी, हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश स्टेट ने ये लॉन्च स्कीम जो है वो लॉन्च की है। यश प्रोग्राम रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू यश मीन्स बेसिकली ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ, year of awareness of science and health, and this program has been launched. This is related with the health and the risk communication. Again, it is related to your COVID-19 issue of COVID-19, that is how this issue is being handled and what are the adverse or ill effects of this program. Next question, with reference to Taiwan-1, consider the following statements. It is a Mars mission to China, exactly right answer. 2, it will make China the third country to achieve Mars landing after the USSR and the United States. तो फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों जो हैं दे आर करेक्ट। आपके 18th जो ऑप्शन है उसका सी विल बी द राइट आंसर। What is the name of the NASA's first Mars helicopter which has been named by Vanessa, an Indian origin girl? The answer is Ingenuity. तो Ingenuity is the right answer. तो इसे आप याद रखेंगे, D will be the right answer. GI tag received fruits Shahi Lychee and Zardalu mango are of which states? तो again it is of Bihar. अब देखो GI tag basically क्या होता है, that is the जोग्राफिकल इंडेक्स टैग, दैट इज़ किसी भी एक एरिया में ये चीज़ वो पाई जाती है तो उसके लिए GI टैग जो है वो दिए जाते हैं। तो शाही लीची और जरदालू मैंगो इज आर रिलेटेड टू योर बिहार स्टेट। तो 20 का राइट आंसर इज योर सी 21। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम हिम केयर? स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम हिम केयर सिंस 1st January 2019, राइट। कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर ईयर पर फैमिली, एग्जैक्टली राइट आंसर। ऑल पर्सन्स अबव द एज ऑफ 70 years एंड ऑर्फन्स लिविंग इन बाल आश्रम विल बी कवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर हिम केयर, एग्जैक्टली राइट आंसर। तो आपके ऑल आर D option, that is correct. So D option will be correct in the question number 21. 22, arrange the following banks in decreasing order of the branches present in Himachal. अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत हिमाचल में पूछा जाता है HP में, तो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो 22 है उसका आंसर विल बी ए, दैट इज PNB, मैक्सिमम SBI, सेकेंड लार्जेस्ट एंड थर्ड इज योर यूको।
तो इट इज़ द ए ऑप्शन दैट विल बी राइट. 23rd, which district of HP secured second positions after Dibrugarh in the innovative solutions for plastic waste management. डिब्रूगढ़ के घर के बाद सेकंड पोजीशन जो है वो किसको मिला? दैट इज़ योर सिरमौर. सिरमौर इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे इसे. Next, which state government has launched Ankur scheme to award people of for planting trees during monsoon? The option is Madhya Pradesh B. This is for the people. जब भी मानसून शुरू हो रहा है तो उस टाइम पे जो लोग प्लांट करेंगे, आपके ट्रीज प्लांट करेंगे, तो उन्हें जो है रिवॉर्ड्स जो है वो दिए जाएंगे. तो दिस इज योर अंकुर स्कीम. नेक्स्ट, इन विच स्टेट राजा प्रभा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? उड़ीसा इज योर राइट आंसर. सी विल बी द राइट आंसर एंड इट इज ड्यूरिंग मिथुन संक्रांति. एंड दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द वुमेनहुड. तो वुमेनहुड से इस फेस्टिवल जो है वो रिलेटेड है. एंड मिथुन संक्रांति के समय ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है. उड़ीसा इज द स्टेट वेयर इट इज सेलिब्रेटेड. रेस्ट दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रेस्ट यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल. दोनों ही लिंक टेलीग्राम के दिए गए हैं फॉर योर रेगुलर अपडेट्स एंड यू कैन ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल. It will be quite helpful for you for your exams. So hope you like the video. Thank you and have a nice day.